Hello everyone, welcome to another session of Ideas. One of the humanity's pressing need is to keep informed and stay connected with each other, and not just in physical sense but beyond physical also. This led to formation and evolution of mass media. In the last video, we talked about mass media and social media and how they shaped communication in modern society. In today's video, we are going to talk about evolution of communication in ancient culture and modern society. So let's take a look how communication was practiced during ancient culture. Communication, both oral and written, were used in ancient culture. Oral society are those society which did not have any written language. तो उनके पास रिटन लैंग्वेज नहीं था, तो उन्होंने किस मीडियम को यूज किया? दे यूज स्टोरीज एज अ मीडियम टू प्रिजर्व द पास्ट, ट्रांसफर कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Another form of communication which was found were inscriptions on walls of caves, pillars, etc. Writing or written language was developed around 5000 years ago. पर वो वैसे नहीं थे जो टेक्स्ट हम यूज करते हैं, उससे बहुत डिफरेंट थे. They were like more picture based alphabets. Something very similar which was invented in Egypt again some 5000 years ago, and it was called hieroglyphics. Let's see how communication evolved in ancient China. Ancient China में Bai Sheng invented first movable type of printing in 1041. How did he manage to do that? What he did, he took a block of porcelain clay, he carved Chinese symbol on top of it, and then he put it in a oven. So then it burned and it turned into a solid brick. And then to convey his messages, what he did, he dipped those Chinese symbols in ink and then he printed it on silk. So that's how first printing was introduced. But since it is a manual process, everything was done manually, it was very slow. तो एक टाइम में कुछ ही पेपर प्रिंट हो पाते थे. तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ी, कैसे इसको इम्प्रोवाइज किया गया? Let's find out. So first printing press was invented by German goldsmith Johannes Gutenberg in 1440. अब ये प्रिंटिंग प्रेस फास्ट क्यों थी? क्योंकि इसमें मशीन का यूज किया गया था. सो मशीन्स की वजह से क्या हो गया, प्रिंटिंग जो है बहुत फास्ट हो गई. एक टाइम में बहुत सारे पेपर प्रिंट होकर आने लगे. सो द ईयर ही इन्वेंटेड दिस इन 1440, एक साल बाद ही पुट इट ऑफ फॉर कमर्शियल यूज कि उससे आप न्यूज़पेपर, बुक सब ये सब प्रिंट कर सकते थे. सो फर्स्ट बुक जो इस प्रिंटिंग प्रेस ने पब्लिश की वो दैट वाज बाइबल एंड व्हिच वाज 42 पेज long. So Bible was the first book which was printed. Let's take a look at evolution of communication during industrial age. That is, we are given a timeline 1700 to 1930. So here is a list of very important landmark inventions by many inventors, and the time period is also, year is also given. Let's talk about them one by one. So in 1774, there was invention of electric telegraph, and it was invented by Swiss physicist Louis. अब टेलीग्राफ का क्या इम्पोर्टेंस था? पहले लोग फिजिकली मैसेज को कन्वे करते थे, तो फिजिकली जब ट्रांसपोर्ट करे तो उसमें तो बहुत टाइम लगता था. टेलीग्राफ आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आने से कि मैसेज जो है विद इन मिनट्स में कन्वे होने लगे, तो टेलीकम्युनिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया. इन 1829 टाइपराइटर की इन्वेंशन हुई बाय W.S. आजकल तो हम सभी अपने लैपटॉप पे टाइप करते हैं, कीबोर्ड होता है, स्क्रीन पे आ जाता है. उस टाइम लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर ही नहीं था,
तो कैसे टाइप करते थे? टाइपराइटर पे, उसमें एक कागज रखा रहता था, जो जो टाइप करते थे उस पे प्रिंट हो जाता था। तो इस तरह से प्रिंटिंग होती थी। देन इन 1876 इन्वेंशन हुआ टेलीफोन का बाय ग्राहम। इसने पूरे कम्युनिकेशन सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। अब क्या हुआ? टेलीग्राफ से तो आप मैसेज भेज सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। टेलीफोन में आप बात भी कर सकते हो, उस आदमी की या उस पर्सन से जिससे भी आप बात करें उसकी आवाज भी सुन सकते थे। तो डिस्टेंस जो है वो अब मैटर करता ही नहीं था। जैसे जैसे ये इम्प्रोवाइज हुआ, आप इसको इंटरनेशनल कॉल्स भी कर सकते थे। तो डिस्टेंसेस जो है वो धीरे धीरे मैटर नहीं करने लगे। आप कहीं भी रहे पर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। देन इन 1877 थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया। इसका क्या पर्पस था? यहाँ पहले मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ तो आते थे, पर अब फोनोग्राफ के इन्वेंशन से जो मैसेजेस है वो बहुत रीडेबल हो गए, एक टेप की तरह आते थे जिसपे मैसेज कोडेड होते थे, जिसको आप पढ़ सकते थे। तो मैसेजेस को पढ़ना और आसान हो गया। इन 1895 रेडियो का इन्वेंशन हुआ, जो किसने किया? इटालियन फिजिसिस्ट मार्कोनी। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि AIR जो है 1936 में लॉन्च हुआ। AIR ने रेडियो को बहुत पॉपुलर कर दिया इंडिया में, पर एक्चुअली रेडियो की शुरुआत 1927 में ही हो गई थी, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी या कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। पर वो सब पॉसिबल हुआ बिकॉज 1895 में रेडियो का इन्वेंशन हुआ। नाउ 1920 में फर्स्ट टाइम रेडियो कमर्शियल आया। जब रेडियो बना तो उसको न्यूज और एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज किया ही जा रहा था, पर ये सोचने लगे कि इसको और कैसे यूज कर सकते, क्योंकि उसका रीच जो था बहुत वाइड था। तो एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस के लिए भी उसको यूज किया जाने लगा। इन 1923 फर्स्ट न्यूज मैगजीन टाइम जो है वो लॉन्च की गई, और 100 साल हो चुके हैं वो मैगजीन अभी भी प्रैक्टिस में है, अभी भी पब्लिश हो रही है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैगजीन ऑफ दिस वर्ल्ड। इन 1923 टीवी का इन्वेंशन हुआ। टीवी ने तो सबको बिल्कुल हुक्ड कर दिया, सब टीवी से बिल्कुल हुक्ड हो गए। 1927 में टीवी ट्रांसमिशन पॉसिबल हुआ। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, दूरदर्शन को लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1959। वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि टीवी ट्रांसमिशन पॉसिबल हुआ। दैट वाज इन 1927। 1940 में केबल टीवी का इन्वेंशन हुआ। ये इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ था। केबल टीवी कुछ नहीं था, एक मोटी सी तार होती थी जो टीवी के साथ कनेक्ट होती थी, और जो थ्रू सैटेलाइट की वजह से वो पॉसिबल हो पाता था, और बहुत सारे चैनल्स जो है आप उस पे देखते थे। 1950 में फर्स्ट FM रेडियो स्टार्ट हुआ, जो अभी भी चल रहा है, एंड इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। 1963 में ऑडियो कैसेट, फिलिप्स कंपनी ने ऑडियो कैसेट का इन्वेंशन किया। ऑडियो कैसेट का इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सारी म्यूजिक कंपनीज ऐसी हैं जो इस बिजनेस में आई थैंक्स टू ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट का सेल इतना ज्यादा था कि उन्होंने बड़ी म्यूजिक कंपनीज बना दी। सो म्यूजिक को सक्सेसफुल या पॉपुलर बनाने में ऑडियो कैसेट्स का बहुत बड़ा रोल है। 1969 में वो आया जिसको हम आज के दौर में वाईफाई कहते हैं। पहली बार एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को अक्रॉस द डिपार्टमेंट कनेक्ट करता था, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसे हम वाईफाई कहते हैं। दैट स्टार्टेड इन 1969। 1971 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, इसका इन्वेंशन हुआ। ईमेल आजकल हम कितने कॉमनली यूज करते हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1971। देन इन 1973 पहला मोबाइल, हैंड हेल्ड मोबाइल, और वो मोबाइल कौन सा था? मोटोरोला। मोटोरोला मोबाइल जो है उसका इन्वेंशन हुआ। वी ऑल आर सो hooked to mobile, we can't even imagine our life without mobile। पर सोचिए 1973 से पहले तो मोबाइल था ही नहीं, और सब बिजनेस एज यूजुअल था।
1975 में होम कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ एंड दैट वाज डन बाय स्टीव जॉब एंड स्टीव वोजनियाक। स्टीव जॉब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। एप्पल कंपनी एंड स्टीव जॉब्स, दे आर इंसेपरेबल। 1983 में एमसीआई ने फर्स्ट कमर्शियल ईमेल सर्विस स्टार्ट की। तो ईमेल का इन्वेंशन तो हो गया था, पर उसका कमर्शियल यूज जो है वो 1983 में ही स्टार्ट हुआ था। 1985 में launch of Microsoft. So these were the very important path-breaking invention in the field of communication which revolutionized communication in modern world. Now is the time for your task. How social media and politics impact each other? Give example to support your answer. That is all for today. I will see you very soon in next video. Till then, take care. Happy learning.